received PhD in foods and nutrition from Nagpur University. She continued her research and has so far been able to publish 72 research papers, 4 of them being awarded the best research paper. 9 of her students have been awarded PhD under her guidance. She has vast experience teaching for about 2 decades. She has worked as research assistant in UNICEF assisted project nutrition, health, education, environmental sanitation, and mother and child health care. At UGC HRDC, she has coordinated many orientation programs. She was the coordinator of Swayam and Unnat Bharat Abhiyan of Rashtrasanta Tukdoji Maharaj Nagpur University. We have pleasure to have you, ma'am. Over to you, Rekha, ma'am. Thank you so much, Radhika. Can you all hear me? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. So thank you so much. At the outset, I thank the coordinator, madam, for inviting me in this pre-PhD coursework program. As madam, I'll be taking a session on statistical analysis, and I'll be telling you about a statistical tool. Are you all comfortable with English, or should I be bilingual? English आणि हिंदीत बोलू चालेल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bye. I'll be sharing my screen. Once it is shared, please let me know. Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. Hello. Now I'll be telling you about statistical tool that is inbuilt in your computer in Excel, and that is known as Tool Pack. But before I start with the statistical tool, let me explain to you about analysis and interpretation of data. What is data and how it is analyzed? We'll not go into much detail because I think it is first or second day of your course. So just the basics I will complete, and I will then shift over to the next part, that is, hello? Then I will shift over to the next part. प्लीज म्यूट करा, अपना म्यूट कीजिए प्लीज, ऑडियो म्यूट कीजिए. So analysis and interpretation of data means what is statistics? Statistics, it is a branch of applied mathematics, and it is concerned with collection and interpretation of quantitative data and the use of probability theory to estimate population concerns parameters. Okay. Now here we use probability theory to estimate population parameters. That we will see later on how it is done and what we can and what we cannot do. So statistics can provide objective criteria for evaluating hypothesis. It can do synthesis of information. It can help to detect the pattern of data. It can help to evaluate argument, but it cannot tell you the truth. Okay, statistics can never tell you truth. It will give only probability of being correct or being wrong. Okay, it will only give you a probability of being correct or being wrong. Then it cannot compensate poor design. If your research design is poor, it cannot compensate with the design. So if you are doing a research, you need to first show this to a statistician if you have a questionnaire, that how to generate my questionnaire, how to make my questionnaire, so that it can be later on the data can be analyzed through proper procedures. Then it cannot indicate clinical significance. Now let us see what is data. So data is collected from various sources through the use of different tools and techniques. Generally consists of numerical figures,
ratings, narrations, responses to open-ended questions comprising a questionnaire or an interview schedule. So I think majority of you must be having your questionnaires in your PhD, and you must be using for generation of data. Then let us see what are different types of data. There are two major types. One is known as qualitative data and another is quantitative data. So qualitative data are verbal or other symbolic materials, and the detailed description of observed behaviors, people, situations, and events is known as qualitative data. These data are gathered by a variety of methods and techniques, such as you can use observation technique, interviews, questionnaires, open ears, inventories, recorded data from the newspaper, and other documents maintained by educational institutions, courts, clinics, government and non-governmental agencies. Then it provides data of qualitative nature in the form of emotions of respondents, their thoughts and experiences. This we call it as qualitative data. Whereas quantitative data, on the other hand, is obtained by using various tools and tests based on scale of measurement, that is nominal, ordinal, interval, or ratio. This I'll be explaining you in detail. Like we collect the data using these scales of measurement. Okay, it may be nominal data, it may be ordinal, it may be interval or ratio data. Now, what is this? We will see now. The quantitative data are either parametric or non-parametric. You must have heard about ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಏನಂತ ಆ ಅರ್ಥ rule ಬರ್ಬೇಕು number ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು number ವರ್ಷ 13 ಬಿಟ್ಟು is ಓದುವಾಗ mute. ಅದೇ ಅರ್ಥ ಇರ್ಬೇಕು. Roll number 13 ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಾ is mute. ಮಕ್ಕಳ? Let us go to the second exception now. So quantitative data are either parametric or non-parametric. We'll see this, what is parametric and non-parametric. So parametric data means when it undergoes metric scale measurement, and non-parametric are obtained by applying nominal or ordinal scale. Now I'll show you what is this parametric and non-parametric tests. Non-parametric and parametric data. So parametric data are of two types, which includes interval and ratio scale, and non-parametric includes nominal and ordinal. So parametric means when we use metric scale. Metric scale is when you are measuring your height, your weight, temperature, which starts from 0. So any metric scale which starts from 0 are included in parametric. Under parametric, under interval. This I'll explain you again. And non-parametric means when the data is classified according to categories, it is known as nominal or ordinal, or it is known as non-parametric data. Now let us study this in detail. Now we have seen we have a nominal, ordinal, interval and ratio. So the meaning of nominal is, जब आप nominal की बात करते हैं, now when you divide your data according to gender, so what we are doing, we are classifying, we are categorizing the data into male, female and others. Okay, so it is known as nominal data. So when you classify your data according to different categories, the data is known as nominal data. And when the data is classified according to the ranks, according to position in the race, then it is known as ordinal data, like first, second, third, fourth. So let me give you one more example. Like when we study the type of malnutrition in the community, so we say grade 1 malnutrition, grade 2 malnutrition, grade 3 malnutrition, or normal. So when we divide them according to the grades, then it is known as ordinal data. So nominal data is a data when it is divided categorically. So example is gender. Example, you may say like the resident, the local of the state, like it may be rural, urban, semi-urban, peri-urban, then it is known as nominal data. Then ordinal data is, as I said, position in the race, first, second, third. The data is known as ordinal data. Then interval data.
Nominal and ordinal comes under non-parametric data, and interval and ratio scale, they come under parametric data. So this interval data, like when for the any metric scale, when the data is collected, it is known as data. For example, now here in temperature, now any parameter or a variable which is measured in terms of metric scale, it is known as interval data. Now this includes, as I said, weight, height, income, temperature, anything which has zero scale, that is known as interval data. Example here I've given you of temperature. Now ratio scale is very rarely used in other subjects. It is especially used in education. Now the meaning of ratio is, suppose you have given an examination to student of 20 marks, and some of them have failed in the examination. Now those who have failed, it does not mean that they do not know anything about that particular subject. But ratio scale is some bit different than interval scale. So it is very rarely which is the scale is used in education purposes only. So we'll be studying about nominal, ordinal, and interval scale data. Then after this, you must have heard about variables. Now variables means it is a characteristic which tends to vary from subject to subject. That is known as variable. The thing which varies from person to person is known as variable. जो चीज हर person to person change होती है, that is known as variable. Now variable may be demographic and social variable like age and sex wise distribution, socioeconomic status wise distribution, family structure wise, racial, ethnic, religious composition. Like in commerce and management, you may learn about different variables. Like apart from income, you may have different variables. So variables, they are characteristics that tend to vary from subject to subject or from unit to unit, is called as variable. Now let us see what are different types of variables. One classification shows that the variable is divided into discrete and continuous variable. Now, in a very simple language, if your data has decimals, it is known as discrete. It is known as, if your data has whole numbers like 1, 2, 3, 4, 5, it is known as discrete. And the continuous means 1.2, 3.4. Like when you have decimals, the data is known as continuous variable. And when you have whole numbers, it is known as discrete variable. Okay. Then independent and dependent variable. Now the meaning of this is, I'll give you a simple examination, a simple example. Suppose there are a group of adolescent girls who are suffering from anemia. So to treat this anemia, what we have done, we have given them injections of iron to treat anemia. So the doses of iron, after giving the doses of iron, I will be checking their hemoglobin level. Okay. So giving iron is an independent variable. The amount of iron to be given will be independent, whereas dependent variable will be their hemoglobin. So blood hemoglobin level will show you their dependent variable. So independent is because you have given iron. Dependent is because you have given iron tablets to these students, you can see changes in the hemoglobin. So hemoglobin will be dependent variable and giving iron will be independent variable. Now, there are statistical methods which are extensively used in analyzing quantitative data in educational research, and they are classified. Now, for quantitative, we'll be studying. For quantitative, the classification of the statistical methods are, one type is known as descriptive statistics and another is known as inferential statistics. Now, let us study this in detail. What do you mean by descriptive statistics and what is inferential statistics? Now, the meaning of descriptive statistics is, descriptive statistics are sometimes referred to as hypothesis generating studies. If you do not have hypothesis in your study and you are doing a descriptive study, that is, you are not doing anything wrong. Any study which is meant for descriptive study
do not require hypothesis as such. Descriptive studies are meant for generating hypothesis. Okay, descriptive studies से hypothesis generate की जाती है. Hypothesis को test नहीं किया जाता है. Test करने के लिए जो statistics है, that is known as inferential studies, statistics. Now, descriptive studies, they include trend analysis, planning, formulating research questions, etc. And an inferential study is comparative study intended to identify, quantify association, test hypothesis, and identify the causes. यदि आपकी स्टडी में inferential statistics है, इसका मतलब आप comparative study कर रहे हैं, you are trying to identify and quantify associations, you want to test hypothesis and identify the causes. So you need to have hypothesis before doing your inferential statistics, because you'll be testing your hypothesis. So inferential statistics में आपको hypothesis की जरूरत पड़ती है. Descriptive statistics में you do not require hypothesis as such. You need to generate hypothesis after doing your descriptive studies. So these are the main differences in descriptive and inferential studies, statistics. Now another word you must know is inductive and deductive reasoning. So when from a general principle you come down to a special case, it is known as deductive reasoning. And when from a special case to a general principle you reach, it is known as inductive reasoning. Now let me explain you with the example, help of an example. एक एग्जाम्पल देते हैं. समझिए कि हम जानते हैं कि जो भी सिगरेट स्मोक करता है, सिगरेट स्मोक करने वाले को कैंसर होता है, ये हमें पता है. इट इज अ जनरल प्रिंसिपल कि जो सिगरेट स्मोक कर रहा है उसको लंग का कैंसर हो रहा है. सो यदि एक आपको स्पेशल केस दिखता है, कोई एक केस दिखता है, तो व्हाट यू विल से बिकॉज ही वाज स्मोकिंग ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. सो सिगरेट स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ कॉजिंग कैंसर. सो एक जनरल प्रिंसिपल से आप एक स्पेशल केस की तरफ आते हैं. बट जब यदि आप एक स्पेशल केस को देखते हैं, किसी एक को सिगरेट पीते हुए देखते हैं और फिर उसको कैंसर होते हुए देखते हैं, तो यू विल कम टू अ कंक्लूजन कि he used to take cigarettes, so because he was taking this, यानी एक जनरल आप कर देंगे कि हाँ ये जो करता है उनको ही कैंसर होता है. So from a specific case you will come to a general case, that is known as inductive reasoning. So deductive is from general to specific, and when it is specific to general it is known as inductive reasoning. Okay, now descriptive statistics includes describes, it characterizes the sample and no conclusions are extended beyond this group. Now the meaning of this is like if you have your area of your study within your Aurangabad or within say Maharashtra, so your conclusion will not be extended beyond this group. It will be limited to that group. And descriptive study includes methods of organizing and summarizing data in table, ग्राफ्स, नंबर्स. जब आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं टेबल्स में, ग्राफ्स में, नंबर्स में, देन इट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसीज बनाते हैं आप, परसेंट्स बनाते हैं, क्यूमुलेटिव परसेंट बनाते हैं. यू मेजर कैलकुलेट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी like mean, mode, media. When you calculate, we call it as descriptive statistics. When you do measures of dispersions like range, standard deviation, standard error of mean, quartile deviation, we call it as measures of dispersion or descriptive statistics. When you calculate normal probability curves, skewness, kurtosis, it is known as descriptive statistics. When you measure, you do the measures of relative position like sigma score, t-score, percentile scan, rank, it is known as descriptive statistics. So rank order correlation, moment correlation, product moment correlation, they all come under descriptive statistics. And inferential statistics means statistical methods used to draw generalizations beyond the sample with the known degree of accuracy. Like once you conduct an experiment and you come to a conclusion, you will say that your data is 95%. You write the p-value and you write that the p-value is 0.01 or 0.05.
and you say that your data is significant. So what do you mean by this significant word? These all come under inferential statistics. We'll be studying inferential statistics if time permits us. Otherwise, I'll be taking this topic later on. Then the type of inferential statistics to be used depends upon your type of data. आपका data कैसा है उसके हिसाब से statistical inferential statistics लगाए जाते हैं. Whether your data is parametric or non-parametric, what is the level of confidence you want to achieve, what is the hypothesis, what type of hypothesis you have written, आपने null hypothesis डाला, alternative hypothesis डाला, क्या डाला हुआ है. Then types of variable, independent hai, dependent hai. Then how many number of groups you have. Then correlation, significance, association, relationship. आपको क्या निकालना है? Whether you want to compute correlation or you want to compute significance or association or relationship, it depends upon your objectives. आपके objectives क्या है? What do you want to achieve? Then whether you want to see your reliability and validity of scale. So according to this, we have different parametric and non-parametric tests. Like parametric tests include independent t-test, t-test, pair t-test, f-test, Pearson's coefficient of correlation, critical ratio test, z-test. And non-parametric tests include chi-square test, median test, Mann-Whitney test, sign test, Wilcoxon-Marsh pair sign rank test. आप इसका एक फोटो निकाल लीजिए. This will be used, like you will be, it will help you to calculate your data if you will be doing it later on. आप एक इसका फोटो निकाल के या स्क्रीनशॉट निकाल के रख दीजिए. ठीक है? Now this is about the basics I've given you. Now I won't be discussing you in detail. I will directly shift. I'm closing this down. I'll do stop sharing. Now what I will do, I'll show you how to generate data and how to analyze it. Okay. So again, I'm sharing my data. Just a minute. Can you all see this? Yes, ma'am. Yes. Now, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. okay. If it is not visible, your screen is visible, ma'am. Okay. Now this is my Gmail. Now come here. You go to Drive. This is my Drive. Okay. Drive में जाके हम क्या करेंगे? एक सिंपल डेटा जनरेशन के लिए गूगल फॉर्म बनाएंगे. गूगल फॉर्म के लिए I'll go to new, then Google Forms, then I'll go to blank form. So we will generate a data sheet here. Okay, I will write the name of this Google form. Untitled form as DATA data generation form. ठीक है, आपके लिए for pre-PhD coursework. एक ऐसा बनाते हैं. Untitled question. We will not be asking you your name. I will directly ask you a question. Your gender I will ask. And multiple choice questions we'll see. Option 1 will be male. And male, female. Okay, this is a required question. Number 2 will be, I'll be asking you about
the faculty you belong to. I think there are two faculties, commerce and management. Am I right? Yes, ma'am. So, and if there is any other faculty, you can write any other. Any other, here you can mention. And this is also compulsory. Then this was your first question about the gender. Second question is about the faculty. Then third question, I will be asking you about your age in years. What you will have to do is you will have to just write the numbers. Don't write years also. Like if your age is 35 years, 25 years, don't write 25 years. Only write the number. Only write the number. No need to write the years along with the number. Okay. This is the third question. Then fourth is you write your, if you remember your weight, you write your weight in kg. Okay. Not necessary that you should write your correct weight. Then it should be weight in kg. Again, write in numbers. And finally, one more question I'll be asking you. Your opinion. What is your opinion regarding pre-PhD course work? In general, what do you think? What do you think about pre-PhD? It should be conducted, it should not be conducted. This is open-ended question. So short answer question I'm giving you. This is also required. You need to write something about your opinion regarding pre-PhD coursework. That it is good, it should be conducted by university, or it is not at all needed, or what are the advantages? Anything you can write here. Or one more question I'll give you. Write your opinion regarding COVID-19. Anything, whatever you know about this, या आपके दिमाग में जो भी COVID-19 के बारे में वो आप लिखिए एक छोटी सी लाइन में. बिकॉज मैंने आपको यहाँ पे कंपल्सरी नहीं किया आपको नाम लिखना. सो आप डरिए मत कि मैं क्या एग्जाम्पल, क्या नाम लिखूं, क्या चीज लिखूं, क्या आंसर लिखूं. Whatever you feel, you write that. Now I will send you this link in your send link. Shorten the link, copy, cancel. I'll go to chat. From chat, you please copy it down and paste. Please fill it immediately. Can you all see this link? Yes, ma'am. Please fill it. Okay. Please submit it. For opinions, you just write in one sentence or in brief your points. Don't write in detail right now.
Have you started writing? I've not. Yes, I got one response. Good. Yes, good. 2 responses. Yes. I think there are 66 participants. At least 50 we must get within 5 minutes. So once we get 50, we'll stop, or once we get 25, we will stop here. Very good. Good. Very good. We have got 10 responses. हेलो मैम। हाँ, yes. Yes. मैम जैसे हम गूगल शीट को रिस्पॉन्स करते हैं तो उसकी एक कॉपी हमें जीमेल में भी सेव कर सकते हैं। ऐसी भी कोई फैसिलिटी है शायद, हाँ, तो इसमें है, वो लेकिन मैंने डाला कैसे नहीं आप है। बता सकते हैं? हाँ, मैंने इसमें डाला नहीं है, बट उसके लिए आपको एक डालना पड़ता है, सेटिंग्स में जाके डालना पड़ता है। तो मैं थोड़ा देख के बताती हूँ आपको। उसमें एक क्वेश्चन डालना पड़ता है ताकि आप उसको ओके देख सकते हैं कि आपको जो रिस्पॉन्स आया है ये आपको बाद में मिलेगा। मैडम मेल पे भी भेज सकते हैं आप। हाँ, मेल पे भी भेज सकते हैं। मतलब मैंने एक पेपर कॉन्फ्रेंस में क्या करे थे उनको ये फीडबैक फॉर्म भर के दिया था, हाँ तो हाँ उन्होंने उसकी एक मतलब जो मैंने फीडबैक दिया है उसका हाँ एक कॉपी मेरे मेल पे भी आ गया, तो वो हाँ हाँ, सेटिंग वो कैसी आता होती है, है? वो सेटिंग रहता है, मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा है। मुझे ध्यान में आता है तो मैं आपको बताती हूँ। दैट आई यूज टू डू। अभी वो मैंने कैसे किया था, ओके आई लेट यू वंस आई कम टू नो। चलिए, 19 रिस्पॉन्सेज हो गए, 25 तक के लिए रुकते। प्लीज डू इट फास्ट। आप जितना डेटा ज्यादा डालेंगे उतने अच्छे से रिजल्ट आएंगे आपके। ट्वेंटी के बाद में रुक गया, बाकी के लोग नहीं कर रहे शायद। ओके, देन विल स्टॉप हियर। विल स्टॉप हियर रिस्पॉन्सेस। 21। 24। ओके, लेट अस स्टॉप हियर नाउ। मैंने स्टॉप कर दिया, अब रिस्पॉन्सेज आएंगे नहीं। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं ये लिंक को जा रही हूँ एंड आई एम क्रिएटिंग द लिंक। सो ये अपने पास में डेटा आ गया, ठीक है। बट ये डेटा के समय आप देख रहे हैं जो गड़बड़ हुई है वो ये हुई है कि मैंने कहा था कि आप ईयर्स मत लिखो, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे ईयर डाल, एक ही जन है जिन्होंने कॉमर्स 28 ईयर्स और 60 kg डाल दिया। केजी और ईयर्स यहाँ नहीं डालना था, अपने को ये ठीक करना पड़ेगा। नाउ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, अ सिंपल क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ डेटा दिस जेंडर इज? जेंडर कौन से टाइप का डेटा है? मैंने आपको पैरामेट्रिक, और पहले में अपन देखेंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा कौन कौन सा है इसमें से।
बताइए कौन सा क्वालिटेटिव और कौन सा क्वांटिटेटिव है? प्लीज आंसर। इसमें से क्वांटिटेटिव डेटा कौन सा है और क्वालिटेटिव डेटा कौन सा है? Now let me explain to you. ये क्वेश्चन नंबर रो नंबर 4 में क्वांटिटेटिव है मैडम। नहीं, ये 5 और 6 जो है ये क्वालिटेटिव डेटा है। और हाँ ये जो पहले के 4 है 1 2 3 4 ये क्वांटिटेटिव डेटा है। ये क्वांटिटेटिव डेटा है और ये क्वालिटेटिव डेटा है। क्वालिटेटिव डेटा में आपको ऐसे ओपिनियंस आते हैं जिसको आपको स्टडी करना पड़ता है और फिर बाद में लिखना पड़ता है उसका डिस्कशन। ये पहले के जो 4 है ये क्वांटिटेटिव डेटा है। क्वांटिटेटिव में भी मैंने आपको 2 तरह के बताए। क्वांटिटेटिव में आपको पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक बताए। अब ये जो जेंडर और फैकल्टी है ये नॉन पैरामेट्रिक डेटा है। और एज इन ईयर्स और वेट की इन केजी है ये पैरामेट्रिक डेटा है। पैरामेट्रिक डेटा में ये डेटा जो है वो इंटरवल डेटा है। और यहाँ पे अपन देखेंगे ये दोनों भी नॉमिनल डेटा है। नॉमिनल यानी अपन ने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है, जेंडर में मेल और फीमेल में, और फैकल्टी वाइज डिवाइड किया है कॉमर्स और मैनेजमेंट में। ठीक है, सो ये हो गया आपका नॉन पैरामेट्रिक डेटा एंड दिस इज पैरामेट्रिक डेटा। और ये पहले के चारों मिला के कौन सा हो गया? क्वांटिटेटिव डेटा, जिसमें आपको क्वांटिटी मिल रही है, कितने फीमेल कितने मेल कितने कॉमर्स कितने मैनेजमेंट। एज इन ईयर्स आपको स्केल डेटा मिला क्योंकि 33 ईयर्स एज या 41 ईयर्स इनकी सबकी एज 0 से चालू हुई है। सो यहाँ से हम इसको एज इन ईयर्स जो है इसको बोलेंगे पैरामेट्रिक डेटा, स्केल डेटा बोलेंगे। और वेट इन केजी इज ऑल्सो पैरामेट्रिक डेटा और स्केल डेटा। एक बार जब आपको टाइप ऑफ डेटा पता चल गया उसके बाद आप इस डेटा को कैसे कैलकुलेट, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। और आज हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ज़्यादा पढ़ेंगे। अभी इन्फ्रेंशियल पढ़ने का शायद अपने को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो पहले अपन ये देखेंगे। इसके पहले मैं एक छोटा सा आपको पीपीटी बताती हूँ कि जो मैं सॉफ्टवेयर आपको बता रही हूँ। अब आप सब पीएचडी वाले हैं, है ना? आप कहीं ना कहीं पूछने जाएंगे स्टैटिस्टिशियन को कि ये मेरा डेटा कैलकुलेट करके दीजिए, ये काम करके दीजिए। एंड ही और शी विल आस्क यू टू गिव अ गुड अमाउंट ऑफ पैसा। अच्छा पैसा मांगेगा और आप काम करेंगे। आप खुद से ही यदि ये डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, तो नथिंग लाइक दैट। आप आराम से अपना डेटा घर बैठे एनालिसिस कर सकते हैं क्योंकि आपने रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ा तो होगा। ये मैंने जो आपको पढ़ाया अभी ये एकदम बेसिक है, ये हर किसी को आता है ना? इसके ऊपर से स्टैटिस्टिक्स कैसे करना वो अपन देखेंगे। अब मैं आपको यहाँ से स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। स्टॉप शेयरिंग करके मैं आपको एक पीपीटी शो करती हूँ। आप मुझे बताना कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। No, ma'am. If it is not. Just a minute, I'm yet to start. Your screen. Can you all see tool pack? Yes. दिख रहा है? सो आप स्टेप्स नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये जो मेरा कंप्यूटर ये मैकबुक है, तो मैकबुक का थोड़ा अलग है। बट ये मैं जो बता रही हूँ मैकबुक के अलावा आपके पास में यदि कंप्यूटर्स है तो आप उसमें कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको पहले कोई भी एक एक्सेल की फाइल ओपन करनी है। एक कोई भी एक्सेल की फाइल ओपन करना, यू नीड टू ओपन एन एक्सेल फाइल फर्स्ट। ठीक है, एक्सेल की फाइल राइट नाउ आप लिखते जाइए, यू नोट इट डाउन समवेयर। फिर आप उसको बाद में जब आपका क्लास खत्म हो जाएगा तो आप ट्राई करके देखना। और फिर एक्सेल की फाइल ओपन करने के बाद में, एक्सेल की फाइल ओपन करने के बाद में ये कॉर्नर में आपको एक ऑफिस बटन दिखता है, या ऑफिस बटन में जाइए, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे होता है। ठीक है, ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में जाने के बाद में यू नाउ
यहाँ पे जाने के बाद में आपको ऐसा न्यू, ओपन, सेव, सेव एज वगैरह दिखेगा। तो यदि आपका विंडोज 2010 है तो ऑप्शन नाम का यहाँ पे कहीं तो भी दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर। हाँ, अदरवाइज यहाँ पे एक्सेल ऑप्शंस जहाँ पे भी दिखेगा उसको क्लिक करना है। ये 2007 का है, इसलिए यहाँ पर एक्सेल ऑप्शंस दिख रहा है। यदि आपके पास में विंडोज 2010 वगैरह है तो आपको ऑप्शंस यहीं पे कहीं दिखेगा। ऑप्शंस को क्लिक करना है। ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद में आपको एड-इन्स दिखेगा। एड-इन्स को क्लिक करना है। एड-इन्स को क्लिक करना है। एड-इन्स को क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ गो को क्लिक करना है। यहाँ आपको दिखेगा ये एनालिसिस टूल पैक वगैरह ऊपर ही दिखेगा। गो को सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक गो। गो को क्लिक करने के बाद में एक यहाँ पर एक बॉक्स पॉपअप होगा। इसको एनालिसिस टूल पैक और एनालिसिस टूल पैक VBA, ये दोनों को क्लिक करना है। ये दोनों को क्लिक करना है। ये देखिए मैंने दोनों को क्लिक कर दिया। ठीक है, ये दोनों को मैंने क्लिक कर दिया। अभी क्लिक करने के बाद में ओके को क्लिक करना है। ओके को क्लिक करना है। ये मैंने ओके को क्लिक किया। अभी ओके को क्लिक करने के बाद में द स्क्रीन विल बिकम ब्लैंक एंड अ मैसेज विल अपीयर, प्लीज वेट, द कंप्यूटर इज कॉन्फ़िगरिंग। आपको एक मैसेज आएगा कि प्लीज वेट, योर कंप्यूटर इज कॉन्फ़िगरिंग। यदि ऑलरेडी आपने कभी डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपको ये सब मैसेज नहीं आएगा। आपको ये चेक करना है कि ये आया या नहीं आया। तो यू विल गो टू डेटा। डेटा में यदि आप क्लिक करेंगे, डेटा में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डेटा एनालिसिस करके एक आइकन दिखेगा। सो क्लिक डेटा, डेटा एनालिसिस आइकन विल अपीयर। और यदि ये नहीं दिखा इसका मतलब आपके इसमें वो डाउनलोड नहीं हुआ है। और यदि हम ये डेटा एनालिसिस को क्लिक करते हैं तो इसमें 19 डिफरेंट टाइप की स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। 19 तरह की स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से लेके तो जेड टेस्ट तक की 18 टेस्ट है जो आप अपने कंप्यूटर में, अपने डेटा में आराम से एनालिसिस कर सकते हैं बिना किसी के मदद के। ठीक है, सिर्फ आपको ये मालूम रहना चाहिए कि आपने जो डेटा जमा किया है वो आपने बराबर सही तरीके से किया हुआ है। सो ये पूरा हो गया। मैं रिपीट करूँ एक बार या आपको सबको समझ गया? शुड आई रिपीट इट वंस अगेन? Got it, ma'am. Got it, ma'am. Please repeat one time. Got it, ma'am. Got it. I'm repeating Repeat once. once, ma'am. So how to download toolpack? इसमें सबसे पहले आपको एक एक्सेल की फाइल ओपन करना है। आफ्टर ओपनिंग एन एक्सेल फाइल, you will go to office button in the left top corner, and then after this you have to click options। जहाँ पे भी ऑप्शंस लिखा है आपको ऐसे में मिलेगा तो ऐसे में करना है, या ये साइड में फर्स्ट रो में मिल जाएगा, कॉलम में मिल जाएगा, वहां से आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्लिक एड-इन्स को क्लिक करना है। एड-इन्स को क्लिक करने के बाद में आपको गो को क्लिक करना है। गो को क्लिक करने के बाद में आपको एनालिसिस टूल पैक एंड एनालिसिस टूल पैक VBA, ये दोनों को क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में ओके को क्लिक करना है। ओके को क्लिक करने के बाद में यदि आपके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो इट विल बिकम ब्लैंक एंड अ मैसेज विल अपीयर, प्लीज वेट, योर कंप्यूटर इज कॉन्फ़िगरिंग। इसके बाद में चेक करने के लिए वेदर द सॉफ्टवेयर हैज बीन downloaded or not, you need to go to data and then see whether this icon has come or not. Okay, so this is click data, data analysis icon will appear. Okay.
देखिए ये ऑफलाइन काम कर सकते हैं, इसमें आपको ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इट इज फ्री ऑफ चार्ज, इट इज ऑलरेडी बिल्ट अप इन योर एक्सेल फाइल, सिर्फ हमको डाउनलोड करना होता है। आपके एक्सेल में ऑलरेडी ये रहता है, आपको सिर्फ डाउनलोड करना पड़ता है और आप घर बैठे अपना डेटा इसमें एनालाइज कर सकते हैं। और कितने तरह की टेस्ट है? 19 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट कैन बी एनालाइज यूजिंग दिस, राइट फ्रॉम एन एनोवा टू जेड टेस्ट तक की टेस्ट आप इसमें एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल गो बैक टू आवर डेटा। ये मैं क्लोज कर रही हूँ, स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। ओके, अब मैं आपको फिर से लेके जा रही हूँ, डेस्कटॉप में ही रखते हैं ताकि आपको सब चीजें दिखती रहेगी। नाउ दिस इज आवर डेटा। अभी ये अपने जमा किए थे डेटा, कैन यू ऑल सी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ आई विल गो टू फाइल। जब एक बार डेटा आपका आ गया तो आप फाइल में जाओ, फाइल में आप डाउनलोड में जाओ, डाउनलोड से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाओ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लिक कीजिए, ये मैंने क्लिक किया। ये मेरा डेटा जनरेशन आ गया। अब मैं इसको क्लिक कर रही हूँ। जस्ट अ मिनट। दिख रहा है आप लोगों को डेटा आ गया है? कैन यू ऑल सी Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्सेल फाइल? कैन यू ऑल सी द एक्सेल फाइल? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब हम सबसे पहले यहाँ करेक्शंस करेंगे। यहाँ ईयर्स नहीं चाहिए था अपने को, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स न्यूमेरिकल्स चाहिए थे। यहाँ केजी नहीं चाहिए था अपने को सिर्फ 60 वर्ड चाहिए था। ठीक है, सो कॉलम द वर्ब वन इज जेंडर, दिस इज नॉमिनल डेटा, this is also nominal data. These two are nominal data. We call this as non-parametric data. This is scale data. This is also scale data. These are known as parametric data. और ये जो है ये क्वालिटेटिव डेटा है, जहाँ पे हमने ओपिनियंस लिखे, जहाँ हमने ओपिनियन लिखे। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट एनालाइजिंग इट थ्रू यूजिंग डेटा एनालिसिस। ठीक है, अब हम जाएंगे। अब इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे कि when we want to analyze it through your functions tab, यानी functions tab करके कभी आपने एनालिसिस किया होगा इसमें, तो आपने देखा होगा। ठीक है, you must have seen that for such type of data we need to convert them into numericals। यानी ये जो टूल पैक नाम का जो सॉफ्टवेयर है, या कोई भी आप एसपीएसएस में करो या टूल पैक में करो, इनको सबको किस में चाहिए? दे वांट टू गेट दिस डेटा, दिस इज नोन एज स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू यानी जब आप उसको लिखते हैं फीमेल मेल ऐसा, ये इनको नहीं समझ में आता। इनको क्या समझ में आता? इनको एक ही चीज समझ में आती कि आप ये डेटा को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा इसको कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि मैं आई वांट टू रिटेन दिस फाइल एंड आई विल ओपन अ नेक्स्ट शीट। मैं एक और शीट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ। हाँ ठीक है, मैंने कैसे कॉपी किया, ये फॉर्म रिस्पॉन्सेज में गई, ये कॉर्नर में गई लेफ्ट कॉर्नर में, और मैंने इसको क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद में ये पूरा सिलेक्ट हो गया। ये देखिए मैंने ऐसा किया, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट होने के बाद में मैं शीट 1 में जाके मैंने इसको पूरा पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी पेस्ट करने के बाद में व्हाट आई विल डू, आई डोंट नीड दिस, सो आई विल सिंपली गो हियर और मैं इसको जो है डिलीट कर देती हूँ फिलहाल के लिए, अभी मुझे इसका काम नहीं है। अभी जेंडर जो अपना फर्स्ट कॉलम था, हम इसको क्या करेंगे, कुछ तो उनको कैटेगरीज में करने के लिए कोडिंग करेंगे। ठीक है, पहले मैंने क्लिक किया इसको,
इसमें मैं गई डेटा में, डेटा में जाने के बाद में मैं गई फिल्टर में, फिल्टर में जाने के बाद में मैंने इससे पूछा कि कितने मेल हैं। ठीक है, ये इतने मेल आ गया। ये मेल्स को मैंने कन्वर्ट किया, 1 नंबर दे दिया। प्लीज नोट डाउन समवेयर दैट वी हैव गिवन 1 to मेल। ठीक है, मैंने सबको 1 1 बना दिया। फिर सेकंड में गए, अभी जितने फीमेल थे उनको पूछा, ये फीमेल में गए और सब फीमेल्स को अपन ने 2 नंबर दे दिया। ठीक है, सो व्हाट आई हैव डन इज आई गो टू फिल्टर बैक। अब मैंने क्या किया, जितने मेल थे उसको 1 कोड दिया और जितने फीमेल थे उनको 2 कोड दिया। ठीक है, ऐसे ही अपन फैकल्टी का भी करेंगे। फैकल्टी में गए, अदर्स वाला तो कोई नहीं है, कुछ कॉमर्स के और कुछ मैनेजमेंट के है। ये मैंने फिल्टर को क्लिक किया, ये फिल्टर का ट्रायंगल आया। शुड आई गो स्लो और यू ऑल नो दिस? हेलो, Yes, sir. Yes. ओके तो मैम इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके। ओके। सो फैकल्टी में गए, फैकल्टी में Ma'am, can you repeat one now? Can you repeat, ma'am? I'm repeating. I'll show you, I'm showing you how to do coding for this commerce and management. ये मैं पहले गई, Okay. कॉमर्स वाले को देखा, कॉमर्स वाले में जाके मैं कॉमर्स को विल गिव 1, ये कॉमर्स को मैंने 1 क्लिक किया। और ये जो कॉर्नर दिख रहा है बॉक्स का, ये कॉर्नर में जाके आप अपना कर्सर लगाइए तो प्लस साइन आएगी। ये प्लस साइन को आप सीधे ड्रैग कर देंगे तो ये पूरा 1 1 ले लेगा। या तो एवरी टाइम यू नीड टू राइट 1 1 एंड देन स्क्रॉल इट डाउन। सो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट यू कैन डू इज 1 लिखना, कॉर्नर में अपना कर्सर लाना और उसको नीचे डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट अगेन आई गो हियर, दिस ट्रायंगल को मैं क्लिक करूंगी, मैनेजमेंट को क्लिक किया। मैनेजमेंट के सिर्फ 5 ही है, अच्छा जितने 25 लोगों ने दिया था। तो इसको हम 2 नंबर देंगे, इसको 2 को। देखिए कैसे किया मैंने, ये बॉक्स के पास में आपका कर्सर लाइए, कर्सर यहाँ प्लस आएगा तब आपको प्लस जैसी साइन दिखेगी। ये प्लस जैसी साइन को आपको सिर्फ ड्रैग करना है नीचे तक, सब 2 2 हो जाएंगे। और ये जाके मैं फिल्टर फिर से क्लिक कर दूंगी तो अपना डेटा पहले जैसा हो जाएगा। ये मैंने फिल्टर निकाल दिया तो अपना डेटा पहले जैसा था, यानी फुल डेटा आ गया, पूरा 25 लोगों का डेटा आ गया। ठीक है, so we have converted gender into 1 2, faculty into 1 2. We need not convert age into years because it is already in numericals. Weight in kg को भी हमको कुछ नहीं करना है because it is in numerical. Now these two are qualitative data. So right now we will not use it because we are using statistics, mean, mode, median, जो भी use कर रहे हैं हम, जो भी statistics use कर रहे हैं वो हम numerical data के लिए कर रहे हैं. We are using it for quantitative data. So अब quantitative data कैसा analyze करना है वो अब अपन देखेंगे. ठीक है, यहाँ देखने के लिए what I will do, I will go to data and will go to, आपको दिख रहा है मैंने डेटा एनालिसिस को क्लिक किया। आपको ना ये कंप्यूटर में नहीं दिखेगा, आपको करना है तो आपको सॉरी आपके मोबाइल में नहीं दिखेगा, कंप्यूटर में ही दिखेगा सिर्फ। अभी अपन ऐसा करेंगे कि हमको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करना है, यानी हमको मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर और हमको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का कर्टोसिस, स्क्यूनेस, ये सब देखना है। तो हम Ma'am, I'm sorry to interrupt. After this, can you repeat once again after all this, please? It's really a valuable input for us. Yes, so I'm starting only how to tell you about data analysis. ये आप ध्यान से सुनिए, डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है। ठीक है, Okay, ma'am. मैंने कर दिया। सो फ्रॉम डेटा यू नीड टू गो, डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद में डेटा एनालिसिस में जाएंगे। डेटा एनालिसिस में I'll go to descriptive statistics. Okay, you please note it down. Descriptive statistics में जाएंगे और हमने इसको ओके कर दिया। ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया। अब वो आपको इतनी चीजें पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आपका इनपुट रेंज क्या है, व्हाट इज योर इनपुट रेंज।
So what I will do, I will just select data from gender, faculty, age in years and weight in kg. ये मैं पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया मैंने जो भी डेटा सिलेक्ट किया, इट इज शोइंग दैट दिस डेटा इज फ्रॉम A1 to D25. आपको मालूम है कि जैसे ही आप एक्सेल में जहां कर्सर रखते हैं, इट विल शो यू द कॉलम एंड द रो यू आर स्टैंडिंग. कौन से रो में और कौन से कॉलम में आप खड़े हैं वो दिखाता है. लाइक हियर इट इज शोइंग यू A1, यानी मैं A नाम के कॉलम में 1 रो में खड़ी हूँ. इफ दिस इज द वन, इट इज B6, यानी यहाँ से B ये हो गया और यहाँ से 6 नंबर का रो हो गया. सो दिस इज B6. जहां पे भी आप खड़े रहेंगे ये इसको आपको रो और कॉलम बताता है. एंड दिस इनपुट रेंज शोज यू आर फ्रॉम A1 to D25. ये A1 से लेके आप D25 तक है. ठीक है, A1 से D25 तक है. अब इसके बाद ग्रुप बाय कॉलम है या रो है. माय डेटा इज ग्रुप बाय कॉलम. माय डेटा इज ग्रुप बाय कॉलम. कॉलम में मेरा डेटा पूरा लगा हुआ है. ठीक है, सो डेटा इज ग्रुप बाय कॉलम. देन लेबल्स इन द फर्स्ट रो है कि नहीं है. यस, ये दिस इज द फर्स्ट रो और ये फर्स्ट रो में लेबल्स इन द फर्स्ट रो है. तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, इसको मैंने क्लिक कर दिया. ठीक है, अब ये पूछ रहा है आपको जो आंसर आएगा वो न्यू वर्कशीट में चाहिए या कहीं और आउटपुट रेंज चाहिए. अभी फिलहाल आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए न्यू वर्कशीट में अपन लेंगे. एंड देन समरी स्टैटिस्टिक्स को मैं क्लिक करूंगी. समरी स्टैटिस्टिक्स को क्लिक करने के बाद मैं ओके करूंगी. क्या क्या चीजें डाली हमने डाला इनपुट रेंज, जितना डेटा एनालाइज करना है वो डाला. And what we have to do is we have to select right from the label. जो भी लेबलिंग किया है आपने कॉलम को, वो कॉलम की लेबल से सिलेक्ट करना है आपको और सिलेक्ट करके एंड तक जाना है. ये मैंने पूरा सिलेक्ट किया. कॉलम को यहाँ ग्रुप को क्लियर सिलेक्ट किया. लेबल्स इन द फर्स्ट रो को मैंने सिलेक्ट किया और फिर न्यू वर्कशीट प्लाई को मैंने सिलेक्ट किया. फिर समरी स्टैटिस्टिक्स को सिलेक्ट किया और इसको मैंने ओके किया. ठीक है, अब मैं इसको ओके कर रही हूँ. ये मैंने ओके कर दिया. अब ये आप देखेंगे पूरा डेटा एक सिंगल क्लिक में पूरा एनालिसिस हो गया. ठीक है, ये पूरा डेटा सिंगल क्लिक में एनालाइज हो गया. अब देखिए जेंडर, मीन, फैकल्टी, इसका मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता या नहीं निकलता, इसका आंसर अपन यही देंगे. ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि जेंडर एंड फैकल्टी दे आर नॉमिनल डेटा. सो नॉमिनल डेटा का मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह नहीं निकलता है. क्या निकलता है, काउंट निकलता है. काउंट में रहेगा कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं. फैकल्टी में निकलेगा कितने कॉमर्स के हैं, कितने मैनेजमेंट के. ये जो डेटा है ये हमारे काम का नहीं है, बिकॉज नॉमिनल डेटा का मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कर्टोसिस वगैरह नहीं निकलता. इट इज ओनली नंबर्स विच इज गिवन. नंबर में ही पूरा खेल रहता है. तो व्हेन योर डेटा इज नॉमिनल और से व्हेन नॉन पैरामेट्रिक, देन द टाइप ऑफ टेस्ट यू नीड इज नॉट दिस. ये आपको अलग अलग टेस्ट लगती है. जबकि एज इन ईयर्स का जो डेटा था, इसका देखिए मीन आया 35.25 ईयर्स, स्टैंडर्ड एरर आया, मीडियन आया, मोड आया, स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैंपल वेरिएंस है, कर्टोसिस है, स्क्यूनेस है, रेंज है, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, काउंट, ये सब आ गया. ओके, सो दिस इज नोन एज दिस टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज पैरामेट्रिक डेटा. ये स्केल डेटा था जिसका एनालिसिस हो सकता है. वैसे ही वेट इन केजी का जो डेटा था आपका वो स्केल डेटा था, दैट वाज स्केल डेटा. हेंस यू गॉट मीन एज 62.45 kg. दिस इज स्टैंडर्ड एरर, दिस इज मीडियन, दिस इज मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल वेरिएंस, कर्टोसिस, स्क्यूनेस. सो मैं क्या बताना चाहती थी आपको, कौन से टाइप के डेटा में कौन से टाइप के एनालिसिस कर सकते हैं ये जानना हमें जरूरी है. जो नॉमिनल डेटा है, नॉमिनल डेटा का एनालिसिस होने के टाइप्स अलग अलग है. मैंने आपको एक चार्ट बताया था कि आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. उसमें आपको काई स्क्वायर दिखा था. ये जो जेंडर, फैकल्टी वगैरह का एनालिसिस आपको करना है इंफरेंशियल, यू नीड टू गो मैन विटनेस टेस्ट या साइन टेस्ट
या आपको कई स्क्वायर टेस्ट करनी पड़ती है, बट ये सब रहेगा एज इन ईयर्स, वेट इन केजी, आपके कितने ग्रुप्स है, कितने सैंपल्स है, उसके हिसाब से आप यहाँ टेस्ट लगा सकते हैं। बट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपको जेंडर और फैकल्टी की नहीं मिलेगी, क्योंकि वो टाइप का ऑफ डेटा एनालिसिस नहीं होता है। लेट मी शो यू वन मोर थिंग। ये अपना फर्स्ट था जहाँ से अपने डेटा अपने को जनरेट करके मिला था। अब यदि मैं इसको डेटा एनालिसिस टूल में डालती हूँ, ठीक है, ये डेटा है, डेटा को मैंने डेटा एनालिसिस में डाला, और डेटा एनालिसिस में मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डाला। यू जस्ट सी द डिफरेंस, व्हाट हैपेंस। ये मैंने ओके किया। ओके करने के बाद में जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया था, वैसे ही मैं यहाँ सिलेक्ट कर रही हूँ। ये पूरा वेट इन केजी तक मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने B1 से E25 तक का ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद ग्रुप बाय कॉलम किया, लेबल्स इन द फर्स्ट रो है, न्यू वर्कशीट में आएगा, समरी स्टैटिस्टिक्स को क्लिक किया, ठीक है। प्लीज लिसन केयरफुली। ये इनपुट रेंज है ना। हियर आई हैव नॉट converted the numeric the string values into numerical values. तो ये वैल्यूज को मैंने बिना सिलेक्ट किए मैंने ये सब न्यू वर्कशीट वगैरह कर दिया, और ये मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद में क्या आता है, अलर्ट आता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इनपुट रेंज कंटेन्स नॉन न्यूमेरिक डेटा। वो बोल रहा है इसमें नॉन न्यूमेरिक डेटा है, मैं इसको एनालिसिस नहीं कर सकता। So the very first step is you need to convert all your non-numerical data into numerical data, क्योंकि जो एनालिसिस टूल पैक है या SPSS है, जो भी है, आप जिसको भी देंगे या जो भी करेगा, उसको आपको पहले डेटा कोडिंग करके देना पड़ता है। यदि आप डेटा कोडिंग करके नहीं दिए तो ये एनालिसिस नहीं होता है। सो हमने शीट 2 में क्या किए थे, शीट 2 में हमने सबसे पहले जाके लाके हमने इसको डेटा को कन्वर्ट किया था, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया था। और उसके बाद अब ये आपका फैकल्टी का डेटा कुछ भी हो सकता है, 4-5 तक जा सकता है, जितने हैं आपके, जितने वेरिएबल्स है, जितने आपकी कैटेगरीज है, उतने कैटेगरीज में आप जा सकते हैं, ठीक है। एक ये मैंने बताया, एक और बहुत आसान तरीका है, लेट मी सी, हाँ, एक चीज मैं और आपको बता दूं। अभी आपके पास में समझो जेंडर और फैकल्टी का डेटा है, आपका कैटेगरी वाला ही डेटा ज्यादा है, आपके पास में न्यूमेरिकल या ऐसा वाला डेटा नहीं है, और आपके इसी के टेबल्स बनाने हैं। तो यू कैन गो टू, आप सिलेक्ट कीजिए डेटा, इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाके आप पाइवट टेबल में जाइए, पाइवट टेबल में जाके आप ओके कीजिए। अभी आपको क्या करना है, एक मिनट, मैं एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ, और इसको मैं नाम लिख रही हूँ SCALE स्कोर। और यदि आपका जो ये है सैंपल साइज है वो 500-600 है, हाँ ऐसा होता है, सैंपल साइज कहीं कहीं अपने को ज्यादा होता है। सो अपन क्या करेंगे, देखिए मैंने सबको 1 2 3 4 5 6 स्कोर्स दे दिया। जस्ट अ मिनट, सबको मैंने स्कोर दे दिया 1 1 1 1 1, ठीक है। इसको सबको मैंने स्कोर दे दिया 1 1 1। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं जेंडर, फैकल्टी और स्कोर, जस्ट अ मिनट, जेंडर, फैकल्टी, स्कोर, स्कोर एक बनाइए, और स्कोर तक का बना के आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आप जाइए इंसर्ट में, इंसर्ट में जाइए आप पाइवट टेबल में, पाइवट टेबल में जाके आप ओके कीजिए। ओके करने के बाद में आपको कैसा टेबल चाहिए है, तो मैंने आपका ये जेंडर कॉलम में डाला, फैकल्टी रोज में डाला,
और स्कोर को मैंने वैल्यूज में ले लिया। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है? मैंने ये जेंडर जो लिया था वो मैंने रो में डाला था, कॉलम में आपको पूरी मेल फीमेल का पूरा ग्रैंड टोटल और कॉमर्स और मैनेजमेंट के कितने हैं ये देखिए। यदि आपके पास में 600 की 700 की लिस्ट है और आपको उसका टेबल बनाने का है, ये टेबल आप कहाँ पे काम में ला सकते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट करने के लिए, आपको मैन विटने टेस्ट करने के लिए, आपको साइन टेस्ट करने के लिए काम में आ सकता है। व्हेन देयर आर नंबर ऑफ पीपल, एक एक किस में नंबर ऑफ पर्सन है, तब आपको हमेशा नॉन प्रोबेबिलिटी नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट है वो ही अप्लाई करनी पड़ती है। Am I clear to you? Shall I repeat it once again? Clear, Yes. ma'am. मैम प्लीज, No मैम repeat. प्लीज वंस। हाँ, तो जब आपका डेटा बहुत सारा रहता है तब आप ऐसा बना सकते हैं। मैं ये शीट कैंसिल कर देती हूँ ताकि आपको आसान रहेगा। डिलीट। डिलीट। ये मैं डेटा में गई। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक स्कोर का कॉलम बना दिया। यू नीड टू मेक अ कॉलम वेर इन यू नीड टू राइट ओनली 1111, क्योंकि ये 11 ही है जिसको ये कैलकुलेट करता है कंप्यूटर, और फिर वो नंबर बताता है कि इसमें कितने हैं। यानी व्हाट आई वांट टू नो, कितने मेल है जो मैनेजमेंट में है, कितने फीमेल है जो मैनेजमेंट में है, कितने मेल है जो कॉमर्स में है और कितने फीमेल है जो कॉमर्स में है। ठीक है, सो ये देखने के लिए क्या किया अपन ने, ये पूरा सिलेक्ट किया, ये पूरा सिलेक्ट किया, डेटा पूरा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में आप गए इंसर्ट में, यू विल गो टू इंसर्ट, you will go to pivot table, you will go to pivot table, then new worksheet में अपन जा रहे हैं, इसको आपने ओके कर दिया। ठीक है, ओके करने के बाद में अभी अपन क्या करेंगे, तभी अपन ने जेंडर को कॉलम में डाला था, अब अपन जेंडर को रो में डालेंगे। देखिए, और फिर फैकल्टी को अपन डालेंगे कॉलम में। आपको जो समेशन दिख रहा है यहाँ पे हमेशा स्कोर को लाना पड़ेगा। यू कैन नॉट शिफ्ट योर स्कोर इनटू कॉलम और इनटू रो, यू नीड टू शिफ्ट दिस, यहाँ पे लाना है। तो इसको जहाँ समेशन वैल्यूज दिया रहता है वहां पे सम ऑफ स्कोर्स को लाना है। अभी आप देखिए, इसको मैंने 100% दिखा दिया। देखिए, यू कैन सी कितने फीमेल है कितने मेल है, 11 कॉमर्स में है, 2 मैनेजमेंट में, टोटल 13 फीमेल है, मेल 11 है, 8 मेल कॉमर्स में है, 2 मेल मैनेजमेंट में, 3 मेल मैनेजमेंट में, ऐसे 24 ग्रैंड टोटल हो गए। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। ठीक है, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव पूरा बता दिया और मैंने आपको ये पूरा बता दिया। अभी यदि अपने को डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी डिस्क्रिप्टिव के बाद में यदि दूसरा टेस्ट अपने को करना है इंफरेंशियल, सो मेरे को थोड़ा पहले बेसिक बताना पड़ेगा। सो प्लीज लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आई विल शो यू दैट, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस आई एक्सप्लेन यू। या मैं थोड़ा सा पीपीटी में आपको अभी अपन ने डिस्क्रिप्टिव कौन सा किया वो सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ। यस Yes, प्लीज। ma'am, that will be fine. Yes, ma'am. So I'll explain यस you. मैम, दैट विल बी फाइन। ओके, मैं पूरा आपको डिस्क्रिप्टिव में Yes, ma'am. कौन कौन सा किया और हमें जरूरत क्या थी करने की वो वाली एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लीज लेट मी नो व्हेन माय स्क्रीन इज बीइंग शेयर्ड। स्क्रीन हो रही है शेयर? Yes, ma'am. पीपीटी Yes, ma'am. यू कैन सी माय पीपीटी। Yes, ma'am.
तो वो करिए। अभी डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन सा आता है वो मैं थोड़ा आपको बता दूं जो अपन ने अभी तक पढ़ा। इसमें सबसे पहले आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस आता है। इसके बाद सेकंड आता है वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। थर्ड आता है रिलेटिव पोजीशन और चौथा आता है रिलेशनशिप। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। हम हमेशा मीन, मोड, मीडिया इसके बारे में पढ़ते हैं। वो कहाँ लगता है, कब लगता है, वो हम देखेंगे। वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन हमें कहाँ लगता है वो भी हम देखेंगे। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में इट यूज ऑफ एवरेज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल। हमारे क्लास में 50 बच्चे हैं और उनको मार्क्स मिले तो हमेशा बोलते हैं ऑन एन एवरेज कितना मिला होगा, है ना, हम एवरेज पूछते हैं। सो जो मैथमेटिकली ये है, सो तीन मोस्ट कॉमन जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो है मीन, मीडियन एंड मोड। सो मीन का मतलब होता है एरिथमेटिक मीन जो है, एरिथमेटिक एवरेज, दैट इज द मीन डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं। And it is perhaps the most familiar, most frequently used and well understood average. Okay. It is computed by dividing the sum of all. आपको मालूम है कैसे करना पड़ेगा? जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं और उनको जो भी मार्क्स मिले हैं उसकी टोटल करके उसको हम डिवाइड करते हैं, दैट गिव्स यू मीन। अब कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं? मीन इज मोर यूजफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देन अदर मेजर्स। Okay, mean is appropriate statistics when the observations or measures are distributed symmetrically about the center of the distribution. यदि आपको नॉर्मल कर्व के बारे में मालूम है तो जब आपका डेटा बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है सिमेट्रिकली तब हम मीन यूज कर सकते हैं। इट इज द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब ज्यादा आपको स्टेबिलिटी चाहिए है तो आप ज्यादातर इसमें आप मीन कैलकुलेट करते हैं, और इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमको आगे का स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करना है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको आगे में कोई भी टेस्ट यूज करनी है तो यू नीड टू कैलकुलेट, यू नीड टू कंप्यूट मीन। देन मीडियन मैम आई एम सॉरी टू इंटरप्ट मैम। मैम Yes. जो हम लोग डेटा बनाते हैं ना, जो स्टैटिस्टिक डेटा बनाते हैं, उसमें हमको अगर ये करना हो कि सेटिस्फाइड, हाईली सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, तो वो कैसा कर सकते हैं मैम? और उसका परसेंटेज कैसा निकाल सकते हैं ऑटोमेटिक? सर उसको लिकर्ट स्केल में बोलेंगे हम, और लिकर्ट जी स्केल में बनाने के बाद में अभी जो मैंने आपको टेबल क्लासिफाई करना बताया ना, वो जी क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन करके आएगा, उसमें डायरेक्ट परसेंट नहीं आएंगे सर अभी, क्योंकि अपना जी जो डिस्क्रिप्टिव वाला है ना उसमें परसेंट वाला आपको कहीं दिखा नहीं होगा, है ना। तो नहीं मैम। आपको मैंने जो अभी एक टेबल का पूरा पाइवट टेबल बनाना बताया, वो पाइवट जी टेबल जी में जाके आपको करना पड़ेगा। और यदि आप ओके फाइन मैम। एसपीएसएस से करते तो एसपीएसएस में बहुत फैसिलिटीज है, मैं वो भी टीच करती हूँ जी एसपीएसएस पैकेज का। बट एसपीएसएस आप सब जानते हैं कि इट इज वेरी कॉस्टली। 33-35 लाख रुपीज कॉस्ट पड़ता है उसका, वेरी कॉस्टली है। और फिर आप यदि आगे कभी रिसर्च पेपर बनाते हैं और आपने क्रैक्ड वर्जन से बनाया या कुछ से, तो आपको उसमें लाइसेंस नंबर देना पड़ता है, और लाइसेंस नंबर नहीं दिया तो फिर आपका अच्छे जो जर्नल्स है स्कोपस के, ऐसे जर्नल्स में आपका पेपर पब्लिश होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी आप यदि टूल पैक से लिखते हैं तो टूल पैक सबको मालूम है, या जो एक लर्नेड ऑडियर रहते हैं लोग, उन लोगों को पता है। अच्छा, टूल पैक एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ट रहता है और उसके लिए कोई परमिशन या लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, सो दैट यू कैन यूज। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सो अभी मीन कब हम यूज करते हैं? सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ मीन। मीन इज अ मोर यूजफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देन अदर मेजर्स, ये मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद मीडियन। मीडियन हम कब यूज करते हैं? जब ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑब्जर्व्स अबव एंड बिलो व्हिच वन हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। जब ये आपका पूरे टोटल ऑब्जर्वेशन में से बीच का ऑब्जर्वेशन आपको बताना है कि 50th परसेंट का क्या वैल्यू पड़ रहा है, 50th परसेंटाइल क्या बता रहा है, तब आपको मीडियन की जरूरत पड़ती है। यानी आपके पास में 1 से लेके 10 लोग हैं, लेकिन आपको देखना है कि 5वें आदमी का
क्या वैल्यू था, समझिए आप हाइट वाइज मीडियन देखना चाहते हैं तो आपको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको खड़ा करना है, और उसमें जो 5वें नंबर का आदमी है उसकी आपको हाइट लेनी है, तो दैट विल शो यू द मीडियन। इसके बाद इट इज अ मेजर ऑफ पोजीशन रादर देन साइज, इट इज अ मेजर ऑफ, प्लीज म्यूट कीजिए, इट इज अ मेजर ऑफ पोजीशन रादर देन साइज। रेखा शर्मा। हेलो मैडम, कौन बोल रहे हैं? सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ मीडियन कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं? मीडियन इज कंप्यूटेड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मार्कली स्क्यूड। मार्कली स्क्यूड का मतलब जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है वो मैं आगे बताती हूँ आपको, वो किसी एक तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि एक फूड स्टफ, मैंने आपको थोड़ी एनोटेशन है क्या इसमें, एक मैंने आपको फूड स्टफ दिया है और उसकी एक स्केल है, ठीक है, और वो स्केल है 1 से लेके 10 तक की। अब देखिए लाइन बराबर से आएगी नहीं ये, मैं 1 मिनट इसको मिटा के देखती हूँ, अनडू। बोर्ड पे लिखना और इसमें लिखने में फर्क पड़ेगा ना। चल, अब यहाँ पे एक स्केल है, ये 0 से चालू हो रही है, ये 0 से चालू हुई और यहाँ 10 में खत्म हुई है, ठीक है। अब इसके बीच में यहाँ पे आपको दिखेगा ये 5 है, ठीक है, 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए बराबर से नहीं हुआ है बट आपको समझाने के लिए ठीक है। अभी एक कोई प्रोडक्ट है और मैंने आपको बोला ये प्रोडक्ट को आप टेस्ट कीजिए और आप इसको स्कोर दीजिए, और स्कोर, उसकी स्कोर रहेगी आपकी 0 से 10। तो समझिए मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा था कि जितने भी लोगों ने स्कोर दिया वो 6 से 10 के बीच में स्कोर आए, या 7 से 10 के बीच में स्कोर आए, और यहाँ पे कोई स्कोर नहीं आया। अब ऐसे समय में जब मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं मीडियन कैलकुलेट करूंगी, तब मैं मीन कैलकुलेट नहीं करूंगी या कोई वैसा नहीं कैलकुलेट करूंगी। ये स्कोर को लेके मैं कौन से जगह पे आऊंगी, मैं बोलूंगी कि मुझे यहाँ पे देखने का है कि इसका मीडियन क्या है, यानी ज्यादातर लोगों का प्रेफरेंस किस साइड था, ये वाले साइड में था या ये वाले साइड में था। सो समझे सब लोगों ने मुझे 6 7 8 9 10 तक का ही स्कोर दिया हुआ है, तो मुझे मीडियन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो देर इज नॉट सफिशिएंट टाइम टू कंप्यूट मीन एंड इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, ठीक है। इसको मैं फिर से छोड़ती हूँ, क्लोज नोटेशन। और वी आर इंटरेस्टेड इन वेदर केसेस फॉल विद इन द अपर और लोअर हाफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैंने अभी आपको बताया कि वो सेंट्रल पॉइंट से कितना दूर पड़ रहा है, ये 5 के बाद पड़ रहा है या 5 के पहले पड़ रहा है, ये देखने के लिए मुझे मीडियन की जरूरत पड़ती है। 1 मिनट में पहले इसको डिलीट कर दूं, डिलीट। अब अगला है मोड। मोड एकदम सिंपल है, क्या करते हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसको हम मोड बोलते हैं। यदि एक पर्टिकुलर हाइट वाले पर्सन ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि ये ग्रुप का मोड जो है वो 5.4 है, ज्यादातर लोग 5.4 हाइट वाले हैं। सो मोड इज डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन, देन इट इज लोकेटेड बाय इंस्पेक्शन रादर देन बाय कंप्यूटेशन। इंस्पेक्शन से ही पता चल सकता है आपको। आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको डेटा कंप्यूट करना है तो आप उसको जो कुछ टेस्ट है उसमें तो आपको टेबुलेट करना ही पड़ेगा, बट आप रॉ डेटा से कीजिए, आप टेबुलेटेड डेटा से जहां तक हो सके मत कीजिए, है ना। जहां तक हो सके आपके रॉ डेटा से ही आप कैलकुलेट कीजिए। It is located by, yes. If there is only one value which occurs a maximum number of times,
then the distribution is said to have one mode और unimodal, और एक से ज्यादा है तो हम इसको बाइमोडल, और दो से ज्यादा है तो मल्टीमोडल बोलते हैं। अब कब हम मोड यूज करते हैं? जब क्विकेस्ट एस्टिमेट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज वांटेड, जब वेरी रफ एस्टिमेट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल सफिक्स, एंड द पर्पस इज टू नो द मोस्ट टिपिकल साइकिल। इसके बाद आएगा डिस्पर्शन। अभी हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखा, उसमें हमने मीन, मोड और मीडिया देखा। अब हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी बोलेंगे। वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन एक सिंपल शब्द में, यदि मेरे पास एक मुट्ठी भर कंचे है और मैंने कंचों को पूरा ऐसा बिखेर दिया रूम में, ठीक है, तो मैंने क्या किया? डिस्पर्स कर दिया। ठीक है, एक भीड़ खड़ी है और पुलिस ने वहां पे गोली दाग दी, तो भीड़ क्या हुई? बिखर गई। तो जब चीजें बिखरती है, डिस्पर्स होती है, तो उसको डिस्पर्शन के लिए जो मेथड्स यूज में लाते हैं हम उसको मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या डिस्पर्शन बोलते हैं। अब ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में क्या आएगा? जैसे मीन आपको पता चलेगा कि अच्छा ये ऑन एन एवरेज जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है कंचे ने या भीड़ ने, ये इतना है, बट कुछ लोग वो एवरेज से कम हो सकते हैं, कुछ लोग एवरेज से ज्यादा हो सकते हैं। तो जो लोग एवरेज से कम या एवरेज से ज्यादा है, ये नंबर को जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट कम्स अंडर measures of variability or dispersion. So measures of the central tendency describes location along with order scale. But ये जब भी आप मीन कैलकुलेट कर, सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करते हैं, you need to calculate measures of variability. यानी आपने मीन कैलकुलेट किया तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना जरूरी है, या आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया तो आपको मीन बताना जरूरी है। आप अच्छे पेपर्स देखिए, मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि मीन विदाउट स्टैंडर्ड डेविएशन इज मीनिंगलेस, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विदाउट मीन इज मीनिंगलेस। सो जब भी आप मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको देखना है कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी डिस्कशन होना जरूरी है। और इसके जो अलग अलग टाइप्स हैं, इसमें रेंज, एवरेज, स्टैंडर्ड, ये चार आते हैं। रेंज तो अभी मैंने आपको दिखाया कैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में रेंज आ जाता है, बट एवरेज डेविएशन से ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और क्वार्टाइल डेविएशन जब भी हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम अब ये तीनों को देखेंगे। रेंज हमको बताएगा लोएस्ट और हाईएस्ट में क्या डिफरेंस है, वो रेंज हो जाएगा। एवरेज डेविएशन हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि एवरेज डेविएशन में साइंस जो है माइनस और प्लस, वो कंसिडर नहीं की जाती, वो कंसिडर की जाती है, सॉरी की नहीं जाती है, इसलिए उसका जो आंसर्स है वो बराबर नहीं आते, इसलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं। इसमें स्क्वायर करके लिया जाता है ताकि उसमें जो माइनस स्कोर्स है वो स्कोर्स को हम उसकी डिफिकल्टी को बाहर निकाल सके। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। रेंज, आपका टाइम खत्म होने आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ले रही हूँ। द रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ये मैंने आपको बताया कि जो हाईएस्ट माइनस में रहेगा हे आहे का पत्र काढलेलं आपल्याकडून टाकून देऊ। रेंज कब करते हैं आपको इजीली कैलकुलेट करना है, लिमिटेशंस है। ठीक है, और एवरेज डेविएशन हम यूज नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया कि एवरेज में प्लस और माइनस साइन को दे आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम ज्यादातर लेते हैं क्वार्टाइल डेविएशन कब लेते हैं? जब आपने मीडियन कैलकुलेट किया और आपको एक डिस्पर्शन का मेजर यूज करना है तो क्वार्टाइल डेविएशन करना पड़ता है। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब क्या आता है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। फिर से मैं एनोटेशन कर रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ। आप समझिए ये एक स्केल है, ठीक है, ये यहाँ पे है 0, ये यहाँ पे है 100, बहुत अच्छे से बन नहीं रहा है ना।
तो आप ये मत समझने का कि ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखना थोड़ा मुश्किल है अपने को। 1 0 0। अब ये कहीं यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे आएगा 25, यहाँ आया 75। ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब होता है बीच का 50, यानी 1/3 से लेके तो 3/4 तक की जो वैल्यू है, इतना पोर्शन जो बताएगा वो बताएगा क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, मैं अब ये एनोटेट नहीं करती हूँ, इसको मैंने बंद किया। अब देखिए, द क्वार्टाइल डेविएशन और Q is 1/2 of the scale distance between 75th to 25th percentile in a frequency distribution। यानी अभी तक अपन क्या कर रहे थे, 0 से 100 की स्केल को देख रहे थे, बट अब ये क्या करेगा, यदि आपका डेटा 0 से 100 तक का क्लासिफाइड है तो बीच का ही 50% वाला डेटा लेगा ये। ठीक है, इसको बोलेंगे हम मीडियन। द 25th परसेंटाइल और Q1 इज द फर्स्ट क्वार्टाइल, ये फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया। ये हो गया आपका थर्ड क्वार्टाइल, द 75th परसेंटाइल, और Q3 इज द सेकेंड क्वार्टाइल। ठीक है, और ये जो हमको क्वार्टाइल डिविएशन दिखाता है वो बीच के 25th टू लेके 75th परसेंटाइल तक का डेटा का पोजीशन बताता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने आपको एक डिश दी और मैंने बताया कि 0 से 10 के बीच में आप लिखिए। आप लोगों ने ज्यादातर 6 से लेके 10 तक का ही स्कोर दिया, तो अब मेरा ये क्वार्टाइल डिविएशन पूरा इधर आ जाएगा। 6 से लेके 10 तक के बीच का यानी जो डेटा मिला है उसका पूरा बीच का 25th टू 75th परसेंटाइल। ठीक है, द मीडियन इज द मेजर। हाँ, जहां पे आपका मीडियन है सेंट्रल टेंडेंसी का, वो जगह पे आपको क्वार्टाइल डेविएशन करना है। ठीक है, आप हमेशा याद रखिए इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन हम नहीं करते हैं, हम क्वार्टाइल डेविएशन करते हैं। यदि आपने मीडियन Ma'am, your voice not. यस, पार्डन, Your voice not be clear. माय वॉइस इज नॉट क्लियर, एम आई नॉट ऑडिबल एनीबडी? Audible, ma'am. Audible, ma'am. Audible, ma'am. आपका नेटवर्क Perfectly okay. चेक कीजिए सर आप प्लीज। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, ये सबसे ज्यादा यूज में आता है। जब भी आप मीन कंप्यूट करते हैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करना है। दिस इज सेड टू बी मोस्ट जनरल एंड स्टेबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। आप जब भी मीन कर रहे हैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने एक चीज आपको बताई, आप हमेशा याद रखिए, पूरा थीसिस कंप्लीट करने तक याद रखिए कि मीन बिना स्टैंडर्ड डेविएशन के मीनिंगलेस है, स्टैंडर्ड डेविएशन बिना मीन का मीनिंगलेस है। तो आप जब भी मीन कैलकुलेट करते हैं प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन जरूर लिखिए। ठीक है, इसके बाद में कहाँ कहाँ करना है, जब आपको अच्छी ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी चाहिए है स्टैटिस्टिक्स में, एक्सट्रीम डेविएशंस है और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और अदर स्टैटिस्टिक्स आपको कंप्यूट करना है, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये वेट इन केजी है, ये सबकी फ्रीक्वेंसी है। आप समझिए आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा आया, ये एक्सट्रीम्स में बहुत कम है और बीच में बहुत ज्यादा है। अब यदि आप अपने सीट्स 11:30, so should I stop here or what? Coordinator madam? No, ma'am, you can conclude it in 2 to 5 minutes. Okay. Is it okay? Okay, I'll have to leave because I won't be able to complete this. ठीक है, वो पूरा complete 1 घंटे में नहीं होता है, कोई बात नहीं। So I'll just complete this and I'll conclude it. So मेजॉरिटी टाइम यदि आप इनकम लेवल देखेंगे या किसी की हाइट या किसी का वेट या किसी का एज या कुछ ऐसा, तो आपको हमेशा दिखेगा कि जो बीच का अपनी स्केल रहती है इसमें आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज मिलती है और उसके एंड्स में कम फ्रीक्वेंसी रहती है। ये ऐसा हमें ये स्टाइल में मिलता है। तो जब ये स्टाइल में अपने को डेटा मिलता है, दिस टाइप, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, दिस इज नोन एज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। दिस इज नोन एज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि इट इज अ इमेजिनरी ग्राफ दैट शोज दैट बीच के 2 लेवल में आपके
68.2% केसेस आ जाते हैं, यहाँ पे 13.6 आते हैं, और बचे हुए लेवल में ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का, ये हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। ये आगे मैडम कभी बोलते हैं तो हम ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं कि इट नेवर टचेस द एक्स एक्सिस, हाँ, यानी कुछ ना कुछ सैंपल नंबर्स हमेशा रहते हैं, इसलिए ये यहाँ टच नहीं करता है। ये इसके टेल्स बोले जाते हैं, असिम्प्टोटिक टेल्स बोलते हैं, सिमेट्रिकल साइड्स बोलते हैं। इसका मीन मोड मीडिया हमेशा सेंटर में रहता है यदि आपका डेटा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और ठीक है, कर्टोसिस और स्क्यूनेस हो गया, ये अभी अपन ज्यादा नहीं देखेंगे। आई थिंक विद दिस आई स्टॉप हियर बिकॉज इट विल गो अनलिमिटेड, बहुत सारा इसमें रहेगा। एंड देन स्टॉप शेयरिंग। अब आपको कुछ पूछना है, क्वेश्चंस तो पूछ सकते हैं, और यू कैन नोट डाउन माय नंबर इफ यू विश टू। आई डू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी मैं करके देती हूँ, आई डू नॉट कॉस्ट, it is free of cost for all the PhD students who want to get their data analyzed. So you can reach to me. I am writing my number. आप मैडम से भी नंबर ले सकते हैं, okay? It is just meant for 9823559977. हा माझा नंबर आहे, Can you please repeat, ma'am? 9823. मैंने इसमें चैट में डाल दिया है, Okay. 98755977. या when you call me, I may not pick up your call, unknown number रहेगा तो you just text me that where are you from, where you have attended my lecture. मैं बहुत जगह ये lectures करती हूँ, and I help also. So if you need, you can 9823755977. Rekha Sharma. So if you need any help, I can assist you. ठीक है, so I thank I thank madam for inviting me and wish you all the best PhD scholars. I know PhD एक जन का काम नहीं रहता है, you need a team. आपको लोगों की जरूरत पड़ती है, मदद की जरूरत पड़ती है, and I would like to extend my help to you if you need. Okay, so all the best, and thank you so much, madam, for inviting me in your PhD coursework. Thank you so much. Yes, ma'am. I would like to conclude this session by thanking Rekha ma'am for your guidance. As ma'am introduced us briefly about statistical tools, practical demonstration of Google form. It's very useful, ma'am. I declare that the session is over. And thank you, ma'am. Thank you. Radhika, wish you all the best. I'm leaving meeting now. Yes, ma'am. हेलो राधिका मैम। हाँ, मैम रेखा मैम का नंबर एक बार चैट बॉक्स में शेयर करो ना। मैं व्हाट्सएप पे डाल देती हूँ, कावेरी मैम के पास होगा। ओके ओके, थैंक यू। अभी सब अटेंशन पे कीजिए, अभी ये वाली मीटिंग मैं एंड कर रही हूँ। 11:45 को आपको फिर से यही लिंक ज्वाइन करना है। Hello, ma'am. राधिका मॅडम, हाँ, नंतर या मॅडमला पीपीटी शेअर करायला लावा मॅडम. चालेल चालेल. ठीक आहे. मॅडमचं पूर्ण सांगता का प्लीज एकदा? काय काय काय? आता जे नाव सांगता का पुन्हा एकदा? हाँ, 1 मिनिट. मॅमचं नाव आणि रेखा शर्मा. मोबाईल नंबर शेअर करा चॅट बॉक्स मध्ये. ओके होऊन जाईल. ओके. चॅट बॉक्स मध्ये नंबर दिसत नाहीये मॅमने सांगितलंय. चालेल, तो व्हॉट्सअप वर टाकला जाईल. ओके, थँक्यू मॅम. थँक्यू. मका मिस राधिका मैम अच्छा अब्सेंट नंबर्स टाकलेत बघा चॅट बॉक्स मध्ये 4-5. नाही नाही शो नाही झालेत. प्लीज एकदा रिपीट करता का? 1 मिनिट. टाकलेत मॅडमनी 4, 9, 32, 47, 51, 54 and 72. This is absent number. ओके ओके. पुन्हा एकदा सांगा. मॅम नेक्स्ट सेशन कोणाचं आहे? ते सांगितलं जाईल. 11:45 ला सगळ्यांनी जॉईन करा. सर टाइम वर येतील. ओके ओके, थँक्यू. थँक्यू.